এবার এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নিল উত্তর কোরিয়া এবং ইরাক। नॉर्थ कोरिया ने भी फलस्तीन की हमायत का ऐलान कर दिया। नॉर्थ कोरिया वो अमेरिका के लिए जो दहशत का बायस बना हुआ था, अमेरिका जिससे डरता था, उसी नॉर्थ कोरिया ने बहुत से तजर्बात किए और आज वही नॉर्थ कोरिया फलस्तीन के साथ खड़ा हो गया। आज फलस्तीन के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया और यहाँ पर बात की जा रही है कि जंग बंदी की जाए और इजराइल जो गजा पे बमबारी कर रहा है इसको बंद किया जाए, वरना आज देखें तो ऐसे कई ममालिक हैं जो फलस्तीन के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार हैं। इसमें बात करें रशिया, नॉर्थ कोरिया, इराक, ईरान, लिबनान, ये वो ममालिक हैं जो खुलकर फलस्तीन के साथ खड़े हो चुके हैं। तो आज इसी हवाले से वीडियो है। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बने बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। चलें वीडियो शुरू करते हैं जी। 1 2 3। ফিলিস্তিনের গাজা ভিত্তিক স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের সঙ্গে ইসরায়েলের সামরিক বাহিনীর চলমান যুদ্ধ নিয়ে ইতিমধ্যেই নানা মন্তব্য করেছে বিভিন্ন দেশ। এবার এই যুদ্ধে ফিলিস্তিনের পক্ষে অবস্থান নিল উত্তর কোরিয়া এবং ইরাক। কি বলল এই দুটি দেশ, বিস্তারিত প্রতিবেদনে। হামাস ইসরায়েল সংঘাতের বিষয়ে প্রথমবারের মতো মুখ খুলল উত্তর কোরিয়া। রক্তক্ষয়ী এই লড়াইয়ের জন্য ইসরায়েলকেই দায়ী করেছে কিম জং উনের দেশ। উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক নিবন্ধে বলা হয়েছে, ফিলিস্তিনের জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের অবিরাম অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের পরিণতি এই যুদ্ধ। উত্তর কোরিয়ায় ক্ষমতাসীন দল ওয়ার্কার্স পার্টির মুখপাত্র হিসাবে পরিচিত রোদং সিনমুন 10 অক্টোবর ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাতের বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ প্রকাশ করে। এতে বলা হয়, ফিলিস্তিনের হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে ব্যাপক আকারে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতে ফিলিস্তিনি জনগণের বিরুদ্ধে ইসরায়েলের ক্রমাগত অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের ফল এই সংঘাত। ফিলিস্তিন ইসরায়েলের ইস্যুতে মুখ খুলেছেন ইরাকের প্রখ্যাত শিয়া আলেম আয়াতুল্লাহ আলী আল সিস্তানি। অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইহুদিবাদী ইসরায়েলের বর্বর আগ্রাসনের প্রেক্ষাপটে ফিলিস্তিনি জনগণকে সাহায্য করার জন্য মুসলিম বিশ্বের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। 9 অক্টোবর এক বার্তায় তিনি এ আহ্বান জানান। আয়াতুল্লাহ আলী আল সিস্তানি বলেন, চলমান বাস্তবতায় সব মুসলমানের উচিত ফিলিস্তিনি জনগণকে সাহায্য করা এবং তাদের অধিকার পুনরুদ্ধার করা। ফিলিস্তিনের মুসলিম জনগণের সাহায্যে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, তাদের চিৎকারে সাড়া দিতে আমরা সব মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানাই। আয়াতুল্লাহ সিস্তানি আরও বলেন, আগ্রাসীদের হত্যাযজ্ঞ থেকে ফিলিস্তিনদের বাঁচাতে এবং ছিনতাই হয়ে যাওয়া তাদের অধিকার ফিরিয়ে দিতে সাহায্য করুন। তিনি বলেন, ইসলামী ভূমি ও ফিলিস্তিনকে অবশ্যই দখলদারদের কবল থেকে নিরাপদ করতে হবে। এর আগে হামাস ও ইসরায়েলের যুদ্ধে ফিলিস্তিনের পক্ষে নিজেদের অবস্থানের কথা আগেই জানিয়েছে বিশ্বের দুই পরাশক্তি চীন ও রাশিয়া। ইসরায়েল ফিলিস্তিন সংঘাত বন্ধে দুটি পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই একমাত্র সমাধান বলে মন্তব্য করেছে চীন। অন্যদিকে এই সংকট সমাধানে স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠাই একমাত্র সমাধান বলে জানিয়েছে রাশিয়া। চলমান সংঘর্ষে সৌদি ফিলিস্তিনিদের পাশে আছে বলে জানান সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। সৌদির যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান ফিলিস্তিনের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়ে বলেন, চলমান উত্তেজনা প্রশমনে সম্ভাব্য সব ধরনের চেষ্টা করছে সৌদি আরব। এর আগে বিশ্বের 60টি দেশ সরাসরি ফিলিস্তিনের পক্ষে আছে বলে বিবৃতি দেয়। গত শনিবার হামাস ইসরায়েলে হঠাৎ হামলা চালালে গাজায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে ইসরায়েল। দুপক্ষের পাল্টাপাল্টি হামলায় যুদ্ধ পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এসব হামলায় হতাহতের সংখ্যাও বাড়ছে হু হু করে। এই যুদ্ধে এ পর্যন্ত দুই দেশের নিহতের সংখ্যা 1500 ছাড়িয়েছে। আহত হয়েছে 6000-এরও বেশি মানুষ। तो जी व्यूअर्स, ये थी वीडियो और आपने देखा कि यहाँ पर बात की जा रही है नॉर्थ कोरिया की। नॉर्थ कोरिया भी फ़लस्तीन की हमायत में सामने आ चुका है, रशिया भी फ़लस्तीन की हमायत में सामने आ चुका है। जब से अमेरिका ने इजराइल की हमायत का ऐलान किया, भारत ने इजराइल की हमायत का ऐलान किया, उसके बाद देखें तो नॉर्थ कोरिया, इराक, लिबनान और साथ ही साथ रशिया खुलकर फ़लस्तीन की हमायत कर रहे हैं, फ़लस्तीन का
नाम लेकर कह रहे हैं कि हम लोग इसके साथ हैं। ऐसे तो ही। यहाँ पर देखें तो एक तरफ इजराइल गजा के ऊपर पाबंदियां लगा रहा है, इनका पानी बिजली खुराक बंद कर रहा है, और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, लिबनान और साथ ही साथ इराक ने भी फ़लस्तीन की हमायत का ऐलान कर दिया है। तो जी वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे? ऐसे ही है बिल्कुल, जैसे अब नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया। इससे पहले जब अमेरिका ने ये बात की थी कि हम अपना असला इसराइल को भेजेंगे, इसराइल हमारे असले के साथ जंग करेगा और फ़लस्तीन पर काबू पा लेगा। दूसरी तरफ देखा जाए तो साथ ही रूस के सदर प्यूटन का ये बयान आया था कि अगर आपने ऐसी हिम्मत की कि अपना असला इसराइल को भेजा तो हम आपके साथ जंग का ऐलान कर देंगे, हम पूरी तरह से फ़लस्तीन के साथ खड़े होंगे और हमारी जो जंगी औजार हैं सारे वो फ़लस्तीन इस्तेमाल करेगा। ऐसे ही जब दोबारा इन्होंने अमेरिका ने अपना जहाज़ भेज दिया तो साथ ही अब नॉर्थ कोरिया ने भी ऐलान कर दिया, क्योंकि इनकी नॉर्थ कोरिया के अमेरिका के साथ बनती नहीं शुरू से ही। अब सदर प्यूटन ने भी ये बात कर दी कि अगर आपने अब कर दिया जंग ऐलान कर दिया आपने, तो हम भी पूरी तरह से फ़लस्तीन के साथ हैं। तो अब ये देखने को अब देख सकते हैं कि नॉर्थ कोरिया और रूस एक साइड पे खड़े हो गए हैं, दूसरी तरफ अमेरिका है, इसराइल है। तो अब ये देखने वाली बात है कि किसका पलड़ा भारी होता है। लेकिन अल्लाह ताला की मदद शुरू से ही मुसलमानों के साथ है। वसीम तो भाई एक चीज बड़ी अहम है कि देखें तमाम ममालिक जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन रखते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। अगर यहाँ पर ये जंग थमती नहीं है, रुकती नहीं है, तो ये बड़ी तबाही लाएगी। बड़ी तबाही ला अगर सकती है। एक भी मुल्क की तरफ से ऐसे वेपन का इस्तेमाल किया गया तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। तो बिल्कुल यहाँ ऐसे ही। पर जितने भी बड़े ममालिक हैं इनको समझदारी दिखानी चाहिए थी, इनको चाहिए था कि प्रेशर डालकर इस जंग को रोकते। ऐसे ही है। यहाँ पर रोकने के बजाय क्या हुआ है कि साथ देने का ऐलान कर दिया है। वो उनकी आपस अमेरिका में को चाहिए था कि यहाँ पर इसको रोकता, हाँ इस जी। जंग को बढ़ने से रोकता, और अमेरिका खुद इस जंग में कूद पड़ा है। बिल्कुल। भारत को चाहिए था ये जंग रोकने की बात करता, ये खुद उस जंग में कूद पड़ा है। उसके बाद रशिया और नॉर्थ कोरिया ने भी फलस्तीन की हमायत करने का ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी जंग की तरफ भी जा सकता है, वर्ल्ड वॉर की तरफ भी जा सकता है। कि आज देखें तो दुनिया के बड़े ममालिक जिनके पास बड़े वेपन है, जिनके पास बड़े मिसाइल है, जिनके पास एटमी कुव्वत है, वो ममालिक इस जंग में कूद रहे हैं। तो ये दुनिया के लिए बड़े खतरे की घंटी भी हो सकता है और बड़े खतरे का सबब भी बन सकता है। ये लोग तो शायद ऐसे इंतजार के अंदर बैठे थे क्योंकि मौका मिले तो हम भी ऐसे जंग में शामिल हो, अपने हथियार आजमाने वाली बन जाए। लेकिन अगर देखा जाए तो इसराइल जो है ना, ये एक बहुत जिद्दी कौम है। ये ऐसे नहीं मान रहे कि अगर आप जो कह रहे थे ना प्रेशराइज डाल के, तो वो प्रेशर अगर डलता तो फलस्तीन के ऊपर ही डालना था। इसराइल तो खुद ऐसे नहीं मतलब प्रेशराइज हो सकता, तो वो उसके साथ ही खड़े हो गए हैं और साथ कोशिश कर रहे हैं कि फलस्तीन को सफा हस्ती से मिटा दिया जाए। ये इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म का बयान था। दुनिया की जो असला बनाने वाली कंपनी है वो तो चाहती हैं जंग हो, असला यूज हो, लेकिन आज देखना होगा कि इस जंग को किस तरह रोका जा सकता है और जो हक की तलफी हो रही है इसको किस तरह से रोका जा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।